صف بندی سے متعلق مسائل۔ صف بندی کی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ چنانچہ صف بندی کی اہمیت، نماز باجماعت میں صفیں درست رکھنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کو بڑی ہی تاکید اور اس کی بڑی تعلیم بھی دی ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے صف کے درستگی کے بارے میں۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ہندی نسخہ پہلی جلد صفحہ 182۔ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اس لیے کہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ آگے مزید جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح درست فرمایا کرتے تھے گویا کہ اس سے تیر سیدھا کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو یہ عمل چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف فرمائے اور مصلی پر کھڑے ہو کر کے تکبیر کہنا ہی چاہتے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباد اللہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 182، مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو ضرور درست رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دیں گے۔ کتنی بڑی اہمیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اپنی نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو خوب اہتمام کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اور مزید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعو فوالذی نفسی بیدہ انی لأراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی۔ اس طریقے کی روایت نسائی شریف کے صفحہ 800 حدیث نمبر 809 پر اس کو نقل کیا ہے کہ سیدھے کھڑے ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تم کو اپنے پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی صفوں کو خوب اچھی طریقے سے درست رکھنا چاہیے۔ شرائع حدیث نے لکھا ہے حدیث کے ذیل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزہ اور کرامت کے امامت فرماتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے نمازیوں کو بھی دیکھتے تھے۔ یہ جو سنن النسائی ہے اس کے حاشیے پر، جو حاشیہ سندھی ہے اس کے سنن النسائی کے حاشیے پر، حاشیہ سندھی کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے صفحہ 207 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور اس میں خاص حکمت یہ بھی ہے کہ نماز کے دوران حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، چونکہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی اس میں کامل تربیت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے بھی صفوں کی درستگی کا اہتمام نہایت خوبصورتی کے ساتھ لیا، اور صحابہ نے بھی خوب ہی اہتمام کے ساتھ صفوں کی درستگی کے کام کو انجام دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول بتلایا جاتا ہے کہ جب آپ باقاعدہ صفوں کی درستگی کے لیے، بسا اوقات صفوں کی درستگی کے لیے چند افراد کو نماز کے درمیان مقرر فرماتے تھے، اور اس وقت تک نماز شروع نہیں فرماتے تھے جب تک کہ مقرر کردہ جو افراد تھے وہ خبر نہ دے دیتے کہ ہاں اب صف درست ہو چکی ہے۔ یہ تفصیل جو ہے علامہ ظفر احمد عثمانی
रहमतुल्लाह अलैह ने इलाउ सुनन की चौथी जिल्द सफ़ा 320 जो इदारत उल कुरान कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर, तिरमिज़ी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 53 पर भी इसको नकल किया है। इसी तरीके से इलाउ सुनन की मज़ीद बाज़ रिवायात को देखने से ये भी बात मालूम होती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नमाज शुरू करने से पहले सफ़ अव्वल का खूब अच्छी तरीके से जायज़ा लिया करते थे कि आया पहली सफ़ दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि उस ज़माने में सफ़ इस तरीके से नहीं होती थी जिस तरीके से आज है। तो सफ़ों की दुरुस्तगी का खूब एहतमाम किया करते थे, और अगर कोई शख्स सफ़ से आगे पीछे आता तो दुर्रे से उसकी खबर लेते थे, यानी उसको डांट डपट करते या बस औकात जो है मार करके उसको बतलाते या उसको डांट करके डपट करके जो है उसको कहते कि सफ़ों को दुरुस्त करो। ये तफसीली बहस जो है इलाउ सुनन की चौथी जिल्द सफ़ा 321 जो इदारतुल कुरान कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से तिरमिज़ी के एक रवायत से बात मालूम होती है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला जो अमीरुल मुमिनीन खलीफा सालिस है, तीसरे खलीफा और दोहरे दामाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है, बड़े बाहया किस्म के हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला थे। इनकी हया जो है बहुत ज़्यादा मशहूर थी, बहुत ज़्यादा आप शर्मीले थे, बड़े ही इज़्ज़त और इफ़्फ़त के बड़े ही मुहाफ़िज़ थे, आप बड़े बाहया किस्म के इंसान जो है शुमार किए जाते थे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन में। बहरहाल तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जो अमीरुल मुमिनीन थे, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद वो भी सफ़ों की दुरुस्तगी के लिए चंद अफराद को मुकर्रर करते थे, और जब तक सफ़े सीधी ना हो जाती थी तकबीर तहरीमा नहीं कहते थे। ये तफसीली बहस जो है तिरमिज़ी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 53 पर इसको नकल किया है। लिहाजा इन रिवायात और आसार सहाबा से ये बात मालूम होती है कि हमें भी खूब अच्छे तरीके से सफ़ों की दुरुस्तगी को करना चाहिए कि जब सफ़े दुरुस्त रहेगी तो हमारी नमाज भी दुरुस्त होगी। इसी बिना पर ख़ास तौर पर नमाज़ों में सफ़ों को दुरुस्त रखने का एहतमाम रखना चाहिए। आजकल आम तौर पर इस बारे में मसाजिदों के अंदर बड़ी कोताहियाँ होती है, बावजूद इसके कि मसाजिद में अलग अलग सफ़े भी बिछी हुई होती है और थोड़ी सी बेतवज्जोही से सफ़े सीधी थोड़ी सी तवज्जो अगर दी जाए तो सफ़ बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है और बिल्कुल सीधी हो सकती है। लेकिन फिर भी इस मामले में बड़ी तसाहुली से और बड़ी कमी कोताही के साथ काम लिया जाता है और लोग आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से सफ़ों के दरमियान बसा औकात जगह भी खाली रह जाती है, खला भी रह जाता है। ये अक्सर व बेशतर भी देखा जाता है सफ़ों के दरमियान। और इस पर अगर किसी को कोई शख्स कहता है तो फिर लान तान और मलामत करने लगते, इसलिए जो है इसकी वजह से लोग कुछ कहते भी नहीं हैं। हालांकि इस तरीके से सफ़ों के दरमियान खला रहता है और इस तरह पर ये जो खला जो रहता है, अगर कोई शख्स बाद में आकर के उस खला को पुर करना चाहे तो दाएं बाएं खड़े होकर के लोग खिसकने को भी तैयार नहीं होते हैं कि अगर जगह खाली है, बीच में कोई शख्स आता है तो उस जगह को पुर कर ली जाए, तो लोग इसके लिए भी तैयार नहीं है, तो इसको बुरा समझते हैं। और वो जो जगह खाली है आगे पीछे होकर के उसको पुर कर ली जाए तो इसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। हालांकि ये सूरत हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की बिल्कुल बरखिलाफ है। जैसा कि मैंने कई एक अहदीस पढ़ कर के आपके सामने बतलाई, खुलफाए राशिदीन का अमल आपके सामने बतलाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बड़ी ताकीद जो है फरमाई है। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में जो एक रिवायत बड़ी तफसील के साथ नकल की हजरत फरमाते हैं, सव्वू सुफूफकुम वहादू बैन मनाकिबिकुम वलीनु फी ऐदी इख्वानिकुम वसद्दुल खलल फइन्न शैतान यदखुलु फीमा बैनकुम बिमंजिलतिल खज़फ यानी औलाद ज़अन सिगार। इस तरीके की रिवायत जो है इमाम अहमद इब्न हम्बल मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल और मिशकातुल मसाबीह की पहली जिल्द सफ़ा 98, नसाई शरीफ सफ़ा 811, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 6667 और नसाई के हदीस नंबर 811 है।
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सफ़ों को सीधी रखो और अपने कंधों को एक लाइन में रखो, कतार में रखो, और अपने भाइयों के हाथों में नरम रहा करो। मुराद इससे ये है कि अगर कोई दौराने नमाज सफ़ों की दुरुस्तगी के लिए अपनी जगह से इधर उधर करना चाहे तो अकड़ा मत करो। बस औकात लोग जो है कहते हैं जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, इस तरीके से जो है उसको हड़कार करके भगा देते हैं, हकाल करके भगा देते हैं। तो ये तरह दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से आप नमाज पढ़ना है, अल्लाह के सामने सजदा करना है, नरमी को इख्तियार कीजिए, खुशू के साथ जो है नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, बल्कि तमाम आज़ा को नरम रखो, लोगों के साथ रवैये को नरम रखो। आने वाला जब आप सफ़ों में बैठे हुए हैं तो जब अगली सफ़ में सफ़ पूरी रहेगी तो फिर कोई आदमी जाएगा नहीं, लेकिन बैठने वाले की कोताही ये है कि जब वो बैठते सफ़ों के दरमियान तो पिछली सफ़ में बैठते और अगली सफ़ खाली रहती है। तो जाहिर सी बात है जब अगली सफ़ खाली रहेगी तो आने वाला मुसल्ली जो है वो तो चीर करके सफ़ को आगे जाएगा ही और पहली सफ़ में खड़े होने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको ये नागवार है तो आप खुद जो है पहली सफ़ में पढ़ने का एहतमाम कीजिए और ख़ुद जो है इस सवाब को हासिल करने की कोशिश कीजिए और सफ़ों के दरमियान खला को पूरा रखो, इसलिए कि शैतान उन खाली जगहों में तुम्हारे दरमियान इस तरह घुस जाएगा जैसे भेड़िए के छोटे छोटे बच्चे। किस कदर जो है ताकीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन क़ता सफ़न क़ताहुल्लाह। ये नसई शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 815, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 666। यानी जो शख्स किसी सफ़ को मिलाएगा यानी उसके खला को पुर कर देगा, जो दरमियानी खला है उसको पुर कर देगा तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से मिलाएंगे। और जो शख्स किसी सफ़ को कता करेगा यानी तोड़ेगा, खाली रखेगा, यानी सफ़ के बीच में हायल होगा या किसी सामान वगैरह को रख करके सफ़ों के दरमियान खला को रखेगा तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से काट देंगे, यानी उसे दूर कर देंगे। एक रवायत में इस तरीके से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ों के खला को पुर करने की तरगीब देते हुए इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन सद्द फुरजतन फी सफ़िन रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजतन औ बना लहू फीहा बैतन फिल जन्ना। ये रवायत है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 333 पर है कि जो शख्स किसी सफ़ में खाली जगह को भर दे तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के ज़रिए उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएंगे या उसके लिए इस अमल के बदले जन्नत में एक मकान तामीर फरमाएंगे। कितनी बड़ी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं। इन्हीं हिदायत की वजह से हमें अपने सफ़ों को खूब शरीयत की नज़र में जो है दुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपनी नमाज की जो सफ़े होती है उन सफ़ों को खूब एहतमाम के साथ दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब सफ़ दुरुस्त रहेगी तो हमारी नमाजें भी दुरुस्त रहेगी। चनांचे इसकी तफसीली बहस अगर देखनी है तो किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 430 और 431 और इसी तरीके से 432 पर जो है इसको नकल किया गया है। आप वहाँ देख सकते हैं सफ़ों की अहमियत के सिलसिले में किस कदर जो है अहादीस रसूल मौजूद है।